and recording has been started now. So हम कहाँ थे? So fine. So last class में so this bivariate normal distribution is visible to you ना? Hello, screen is visible ना? Yes, Yes, sir. sir. Visible. Okay, fine. So yeah, thank you. So हम लास्ट क्लास में यहाँ पर थे, हम लोगों ने क्या देखा था? This is bivariate normal distribution देखा था. This is in just in general. We can generalize this bivariate normal distribution to multivariate normal distribution. So for visualization purpose, it is not possible to cover multivariate normal distribution. So I'll I'm going to visualize this bivariate normal distribution. So this is my bivariate normal distribution. So this is an example where your covariance is your association is 0. It means that the x and y's are independent of each other, while in this case this x and y's are dependent on each other. So while looking it from the top view, it can be viewed as this like as a, these are the contours from our top view. So here the dense blue color represents your highest probability, or this is peak of your data, because when you are in peak of data, it means that your data centrally lies over here. So it on this peak, so this is a dense area. So dense area, it means that you are having much data, or most data is available over here. So spread is very high, and for this high spread, what we are having is that we are having high probability over here, and then slightly a lower side, and so on. So this is how we can say that our data is or our x and y's are independent of each other. So our data looks like an single circular shape, while in case of correlated variables where x and y's or x1 and x2 are correlated, so it means that we are having a association, and this correlation looks like a positive correlation, while when we are increasing x, so x to x1, so x2 is also increases, so it signs that it means positive correlation shape. So here it looks like an 0.80 or 80% of correlation in between your data, while in previous slide, wait, I'm going for backward. So in this when you are having top view, so आपको कुछ थोड़ा सा सकरा सा लगेगा, पर एक हाई पीक पर लगेगा. So ऊपर से देखेंगे तो एक instead of rectangle, you are having some क्या बोल सकते हैं, parabola. Yeah, it's parabola ना, parabola बोलते हैं ना? No, it's not a parabola. Ellipse. So it looks like an ellipse, like elliptical structure over here. So ellipse को हम ऊपर से देखेंगे, this is your structure is available now. So this is visualization of data. Data को आप ध्यान से देखना. मैं इस initial इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ ताकि आप डेटा को एक बार विजुलाइज कर पाएँ कि डेटा है कैसा. हम जब इन विजुलाइजेशन पर आगे बढ़ जाएंगे देन विल गो फास्ट. सो काइंडली फोकस ऑन दिस टाइप ऑफ विजुलाइजेशन. सो initially आपके लिए ये important है. So what are the properties of our data? So let's say this sigma is our positive definite matrix. So again we are going for the definition of this multivariate normal distribution. So this multivariate normal distribution is generalization of your univariate normal distribution. So instead of having your variance over here, you are having this covariance matrix available. So I am replacing this covariance matrix. So this variance matrix is this covariance over here. So this is on sigma square. So this is being replaced by capital sigma, and this is x minus mu. So this is your mean of your data. So it is just a covariance matrix. So when we are having this covariance matrix is let's say we consider it as a positive definite. So what is the definition of the sigma square, sigma inverse over here? So let's check. So if our covariance matrix is a positive definite matrix, and we say that sigma inverse is inverse of covariance matrix exists, then we have to prove that this sigma inverse is again a positive definite matrix. So what we are doing is that we are in definition. This is something like, let's say this is a matrix. So let's say
A into E. So this A is any matrix or this sigma is any matrix. So consider just we going to linear algebra. So this A into E. So this is A into eigenvector is equals to the eigenvalues into eigenvector. So this is just a definition of our eigenvectors and eigenvalues. So when it implies that, and now we are just डिवाइडिंग ऑल दिस वैल्यू. सो मैंने यहाँ पे सिग्मा उठा के इस ई के नीचे ले आया और कोवेरियंस मैट्रिक्स को उठा के इस ई के नीचे ले आया. सो मेरे पास वैल्यू का दिस इज एन इनवर्स ऑफ कोवेरियंस मैट्रिक्स इक्वल्स टू 1/, लेमडा इनटू ई. सो वैल्यूज हमने सिर्फ ऊपर नीचे करी, दूसरे को डिवाइड कर दिए. सो इट मीन्स दैट अगेन हमारे पास वही आइडेंटिटी आ रही है, और हमारे पास अगर वही आइडेंटिटी आ रही है, सो वी कैन से दैट दिस इज एन again sigma inverse is a positive definite matrix. So if this is a positive definite matrix, it means that we can find out the inverse of this matrix. So because inverse is very important for us, मैं जब आपको लीनियर रिग्रेशन समझाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि यहाँ इनवर्स इसका इतना इंपॉर्टेंट क्यों है. नाउ अगेन वी आर गोइंग फॉर द कंटूर्स ऑफ दिस बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज वी आर गोइंग फॉर just going for the visualization of our data. So let's say this contours. So मेरे पास ये contours है, मेरे पास ये bivariate normal distribution था. So we can plot it in our Python program, and मैंने इसको Python में plot करा ही है. So this is from my code. So this is a bivariate normal distribution. So just again when we are going from a top side. So आदित्य ने पिछली बार क्वेश्चन पूछा था लास्ट क्लास में, सर वो ग्रीन कलर क्या था. So this is my green color. So look at this. So this is my green color and we are having different types of ellipse available here. So यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है. लेट्स से दिस इज फ्रॉम टॉप पीक. सो इस पीक को हम ऊपर से देखते हैं. सो जैसे जैसे मेरे पास ये डिफरेंट एक्सिस आ रही है ना, एक्स और वाई एक्सिस, तो इस एक्स और वाई एक्सिस को हम ऊपर जाते हैं. सो जैसे मैं ऊपर जाता हूं तो मेरे पास इंस्टेड ऑफ हैविंग सर्कुलर शेप व्हाट वी आर हैविंग एन एलिप्टिकल शेप ओवर हियर. सो नेक्स्ट अब इस कंटूर को हम इस तरह से विजुलाइज करने की कोशिश करें. तो जब मेरे पास ये कंटूर्स की लाइन पास है, इसका मतलब ये है कि मेरा जो स्लोप है वो स्टीप है. और जब मेरे पास कंटूर की लाइन दूर है, इसका मतलब ये हो रहा है कि मेरा जो स्लोप है वो डिसेंट है, मतलब इतना स्टीप नहीं है. तो जहां लाइंस दूर होती जा रही है, इसका मतलब ये हो रहा है कि मेरा जो कंटूर से मेरा जो स्लोप है वो स्लोप ज्यादा एंगल नहीं है. और जब मेरा कंटूर्स की लाइन बिल्कुल पास है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास स्लोप हाईली डेंस है. आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर मेरे पास यहाँ पर इस केस पर देखें, यहाँ पर मेरे पास स्लोप ज्यादा है, तो आप यहाँ पर देखेंगे इस केस में कि मेरे पास जो कंटूर्स की लाइन है वो बहुत पास आ रही है. वाइल इन केस आप यहाँ पर देखो, इस केस में यहाँ पर मेरा स्लोप कम है और यहाँ पे इवन मेरे पास स्लोप आ ही नहीं रहा है. तो यहाँ पर मेरे पास कंटूर की लाइन जो आ रही है वो कंटूर की लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली कांस्टेंट आ रही है. यहाँ कंटूर बन ही नहीं पा रहा है, क्योंकि इसके आगे कहीं जाके कंटूर सेम होता तो इस पोजीशन पर कंटूर बनता. सो इज इट फाइन? इतना समझ में आ रहा है कि कंटूर की लाइन पास है, इसका मतलब मेरा स्लोप हाई है, और कंटूर की लाइन मेरे पास दूर है, इसका मतलब मेरा स्लोप जो है वो बहुत ही फ्लैट है. इज इट फाइन? इतना समझ में आता है आप लोगों को? यस सर. ओके. सो ये देख के चलना, क्योंकि यही इन्हीं चीजों को हम ऑप्टिमाइजेशन, इवन आपके 6th या 7th सेमेस्टर में जब हम जाएंगे डीप न्यूरल नेटवर्क पे, तो भी आपको ये कंटूर्स पे देखना पड़ेगा. तो दिस आर द कंटूर्स. नाउ वी आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ कंटूर्स अवेलेबल. सो मेरे को बता सकते हैं इसमें से पॉजिटिव एसोसिएशन, पॉजिटिव कोरिलेशन कौन सा और नेगेटिव कोरिलेशन कौन सा? सर फर्स्ट वाला पॉजिटिव होगा. ओके फाइन. सो दिस इज गुड. हम वैल्यूज बढ़ा रहे हैं, तो दिस इज एन पॉजिटिव कोरिलेशन, एंड यहाँ पे एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है, दिस इज एन नेगेटिव कोरिलेशन. इंस्टेड वी आर हैविंग कोरिलेशन. दिस इज जस्ट एन मैग्नेट साइन ऑफ योर कोरिलेशन. इवन वी आर हैविंग correlation available here. So this is a correlation. So now we are having a cumulative distribution function available. So हमने joint probability distribution function लास्ट क्लास में देखा था. दिस इज एन जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ में मैं सिंगल एक्स लिखा था, इसकी जगह में x1 x2 x1 एंड सो ऑन अप टू xn लिख सकता था. सो दिस इज x1 अप टू xn. सो इट इज रिप्रेजेंटेड एज एन x. सो दिस x इज x1 x2 x1. So the joint probability distribution of this multivariate normal distribution is represented by this formula. Now we are going for cumulative distribution function. So what do you mean by the cumulative distribution function? हम फॉर्मूले पे बाद में जाते हैं, पहले यहाँ देखते हैं. So
हमने जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखा था इस केस में, तो यहाँ पर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, इस जगह पे कोई प्रोबेबिलिटी, लेट्स से हम यहाँ पे आते हैं, इस जगह पे एक प्रोबेबिलिटी, दूसरी जगह पे दूसरी प्रोबेबिलिटी, तीसरी जगह पे तीसरी प्रोबेबिलिटी, चौथी प्रोबेबिलिटी, पांचवी प्रोबेबिलिटी एंड सो ऑन। नाउ इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या करते हैं, पिछली प्रोबेबिलिटी देन अगली प्रोबेबिलिटी, उन दोनों को ऐड करके नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी आती है। लेट्स से यहाँ पे मेरे पास 0.5 है, इस जगह पे मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0.6 हो गई, तो इस स्टेप पर मेरा क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0.5 प्लस 0.6 दिस इज इक्वल्स टू 0.11। सो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी मतलब अभी की प्रोबेबिलिटी और पुरानी प्रोबेबिलिटी दोनों को ऐड करते हैं। फाइन, सो दिस इज क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। लेट्स से यहाँ पर मेरे पास आ रहा है, तो यहाँ पर मेरी चीजें बढ़ती जा रही है, एक बार कुछ बड़ी, यहाँ कुछ बड़ी, यहाँ कुछ बड़ी, सो दिस इज माई क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये मेरा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है एंड दिस इज माय क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो देखो, अगर मेरे पास डिस्क्रीट केस है तो मैं इसको बार से रिप्रेजेंट करूंगा, अगर मेरे पास कंटिन्यूस डेटा है तो मैं उसको एज ए सिंगल दिस इज कर्व रिप्रेजेंटेशन करूंगा। तो आप देखें, पहली बार में मेरे पास 0.7 आई तो मैं 0.7 यहाँ आया, नेक्स्ट उसके बाद मेरे पास सॉरी दिस इज 0.5 आई तो मेरे पास यहाँ कुछ आया, देन वी आर हैविंग लेट्स से दिस इज 0.4, दिस इज 0.6, सो दिस इज नियर अबाउट 5 एंड सो ऑन। सो मेरे पास यहाँ कुछ प्रोबेबिलिटी आई। तो अब यहाँ पर जब हम क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करेंगे, तो पहली वाली प्रोबेबिलिटी मेरे पास यहाँ आ रही है, सो दिस इज फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, सेकंड वाली पिछली वाली प्लस ऐड करते हुए, तो ये स्टेप फंक्शन हमेशा बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि पुरानी प्रोबेबिलिटी से आगे बढ़ा। अगर कांस्टेंट वैल्यू होती तो यहाँ मेरे पास वैल्यू कांस्टेंट होती, लाइक इन केस फॉर द कंटिन्यूस वैल्यू। सो दिस कंटिन्यूस वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, दिस इज माय कंटिन्यूस वैल्यू, तो ये हमारा दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। देन वी आर गोइंग फॉर लेट्स से फॉर द कंटिन्यूस वैल्यू क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो ये हमेशा एज अ कर्व ऊपर बढ़ता जाता है। सो इज इट फाइन? समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड योर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन? सो आई अज्यूम दैट आप लोगों ने पढ़ा होगा, सो मैं इसको जस्ट रिपीट कर रहा था। फाइन, सो नाउ अगेन वी आर गोइंग फॉर लेट्स से मैं इसको 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करता हूं, तो मेरा 2 डायमेंशन में आपके पास कुछ फिगर ऐसा आएगा। लेट्स से दिस इज माय कंटिन्यूस डेटा, सो मेरे पास कंटिन्यूस के लिए ये कर्व आ रहा है। अब 2 डायमेंशन में आएंगे तो इधर की प्रोबेबिलिटी भी ऐड होगी, इस एक्सिस की प्रोबेबिलिटी ऐड होगी, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा आएगा। सो दिस इज अगेन एंड योर डेटा visualization. So now so the cumulative probability density function or distribution function in one dimension can be extended in the 2 ways. So we are having 2 ways, either we are going for the rectangular or we are having some ellipsoidal region. So for rectangular region we are considering the discrete case, and for the ellipsoid we are considering the continuous case, that is your data is continuous, and when we are considering the rectangular it means your data is discrete. So for rectangular case, what is the your cumulative distribution function? So this is cumulative distribution function fx is represented as probability of x. Let's say I am going for the probability, let's say at the value of 0.8. So for the cumulative distribution function, what we can say that what is the probability of x when x is less than 8. So we are going to add, let's say probability at 0.7 plus probability at 0.75, then probability at 0.8. So this is my cumulative function. So we are adding the previous value at that certain point. So at this certain point x. Then again for ellipsoid function, what we can do is we can integrate from minus infinity to so that certain points, or we can have this value, let's say x minus mu t, then mu transpose, then your covariance matrix, then x minus a. So this must be less than this is chi-square distribution with n number of degree of freedom again. So this is again a chi-square distribution. So this must be for the case of continuous distribution, we can say that this is a chi-square distribution with n degree of freedom. So हमने लीनियर रिग्रेशन जब पढ़ा था तो हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर करा था. सो दिस इज एन डिग्री ऑफ फ्रीडम. आई विल उसको फिर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे. सो दिस इज अगेन, और वी कैन से दैट वी आर इंटीग्रेटिंग. सो वी आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम दिस सर्टेन पॉइंट टू दिस सर्टेन पॉइंट. सो व्हेन वी आर हैविंग क्यूमुलेटिव फंक्शन, आइदर वी कैन इंटीग्रेट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर सर्टेन पॉइंट्स, और इन केस ऑफ discrete data we are adding our values from let's say from 0 to at certain point this. So this is my cumulative distribution function. So this is probability density function and this is cumulative distribution function. Is it fine? So यहाँ तक समझ में आया आप लोगों? Shall I proceed? Yes sir. Okay.
नेक्स्ट। सर एलिप्सोइडल रीजन एक और बार समझा दीजिए ना। ओके, सो दिस इज एलिप्सॉइड, फाइन। सो एलिप्सॉइड में क्या होता है, मेरा डेटा कंटिन्यूस है। लेट्स से दिस इज माय कंटिन्यूस डेटा। कंटिन्यूस डेटा जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरी वैल्यू कुछ भी लाई हो जाएगी, तो मैं उसको बार चार्ट से तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यूजुअली कर क्या रहा हूँ, मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो यूजुअली अगर मेरा डेटा डिस्क्रीट है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको सिर्फ ऐड कर सकता हूँ। पिछली वैल्यू, लेट्स से मेरे को प्रोबेबिलिटी चाहिए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन टिल रोल नंबर 60। तो 60 बच्चे तो ही नहीं, लेट एट द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन एट द रेट एट 30 स्टूडेंट्स। तो पहले की प्रोबेबिलिटी, फिर दूसरे की प्रोबेबिलिटी, देन तीसरे की प्रोबेबिलिटी, देन चौथे की प्रोबेबिलिटी एंड सो ऑन। तो मैं उसको ऐड करता जाता हूँ up till 30th student. Now if we are having a value, this is a continuous, तो मैं क्या करूंगा, मैं अगेन उसको ऐड ही करूंगा। तो अब मैं उसको ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ रहा है, मैं रीजन आ रहा है। तो इस रीजन को देखो, मेरे पास दो तरीका होता है। यूजुअली जब हम डेंसिटी एस्टिमेशन करते हैं तो इसको छोटे छोटे पार्ट में, बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड करते हैं, और उन रेक्टेंगल्स को हम बोलते हैं हाइपरप्लेन। अगर आप कभी मशीन लर्निंग पढ़ेंगे मुझसे तो मैं आपको बता दूंगा व्हाट आर द हाइपरप्लेन्स और उसको कैसे डिवाइड करते हैं। तो लेट्स से आप इसको बड़े बड़े पार्ट में यहाँ हम डिवाइड कर लेते हैं, आप इसको कंसीडर करना छोटे छोटे पार्ट में। तो छोटे छोटे पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर, लेट्स से यहाँ पे, फिर यहाँ पे मैं इसमें पेन चलाता हूँ। सो दिस इज माय पेन। सो मैं उसको एक पार्ट में, दूसरे पार्ट में, तीसरे पार्ट में, चौथे पार्ट में, पांचवें पार्ट में, छठे एंड सो ऑन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। ऐसा डिवाइड करूंगा कि मेरा अगर ऐसा रीजन आ रहा है तो इतने छोटे पार्ट में उसको डिवाइड करूंगा कि ये मेरी जो लाइन है, जो ऐसी लाइन आ रही है, वो ऐसी लाइन मेरे को एग्जैक्टली एक रेक्टेंगल बन जाए। तो ये एक रेक्टेंगल ऐसा बन जाएगा, फिर दूसरा रेक्टेंगल मेरा ऐसा बन जाएगा। तो अगेन मैं क्या करूंगा, उसको ऐड ही करूंगा। तो ऐड करूंगा क्योंकि अब ये कंटिन्यूस डेटा है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। कहां से, लेट्स से मैं इसको यहाँ माइनस इन्फिनिटी से चल रहा है, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, सो दिस इज, लेट्स से मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ -2। सो दिस इज, लेट्स से दिस इज मेरा माइनस इन्फिनिटी है, तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन अगर मेरे को 2 तक करना है तो ये मेरी 2 तक वैल्यू। तो इस तरफ की पुरानी वैल्यू और इधर की पूरी वैल्यू, या तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू था, हमने फंक्शन देखा था। सो ये मेरी जो वैल्यू है, तो मैं क्या करूंगा, माइनस इन्फिनिटी, इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, वी कैन डू इज, लेट्स से इस पर्टिकुलर वैल्यू पे 2, इस पे 2 एंड 2 एंड सो ऑन। सो दिस इज आवर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, पुरानी वैल्यू प्लस नेक्स्ट वैल्यू। सो वी आर एडिंग दोस वैल्यू, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 तक। So this is just, we are integrating each and every probability at every certain of points. So this is our integration. So how we, this is just an application of integration. Fine. कोई problem अभी? No sir, thank you sir. Okay, thank you. So this is my cumulative probability distribution. Then we are going for the marginal distribution. So let's say मेरे पास marginal distribution को, क्योंकि मेरे को आपको ये समझाना है तो मैं इनकी basic definitions again वापस include करता हूँ। So let's say this is my कंटीजेंसी मैट्रिक्स। सो मेरे पास एक वेरिएबल है, लेट्स से मैं अगर बाइवेरिएट केस पर जाके लेके चल रहा हूँ, तो दिस इज माय, लेट्स से ith वेरिएबल है, दिस इज माय ith वेरिएबल, दिस इज द वैल्यू ऑफ माय j, सो दिस इज, एंड दिस इज द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल दोज वेरिएबल। सो जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x, मैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, x इक्वल्स टू 1, देन y, sorry, this is I, so this is I equals to 1 and j equals to 2। so मेरी जॉइंट प्रोबेबिलिटी कहाँ से उठकर आएगी, तो मेरी जॉइंट प्रोबेबिलिटी आएगी जैसे x इक्वल्स टू 1 तो j इक्वल्स टू 2। सो दिस इज माय जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 एंड j इक्वल्स टू 2। फाइन। नाउ अब हम बात करते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। सो व्हाट इज द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी? हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो देख लिया था, वो बहुत सा बड़ा सा फॉर्मूला था, लास्ट क्लास में अभी भी देखा था। नाउ वी आर गोइंग फॉर द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। सो इन केस ऑफ मार्जिनल प्रोबेबिलिटी हम क्या करते हैं, हम किसी एक वैल्यू को कांस्टेंट रख देते हैं। लेट्स से मैं अगर x पे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ला रहा हूँ, x पे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ला रहा हूँ, तो मैं x को कांस्टेंट कर दूंगा और y को इंटीग्रेट करना चालू करूंगा, या मैं i को कांस्टेंट रख दूंगा और मैं j को इंटीग्रेट करना चालू करूंगा। तो लेट्स से दिस इज द वैल्यू ऑफ pxi, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, दिस इज माय अगेन मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, एक मार्जिन पे लेके चल रहा हूँ, या मैं इसको एक मार्जिन पे लेके चल रहा हूँ। तो इस केस में लेट्स से दिस इज pyj, तो यहाँ मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर इस वैल्यू को कांस्टेंट कर दिया और इन वैल्यू को इंटीग्रेट करना चालू करा।
Fine. So px is equals to, so this is represented as a normal. So again your marginal distribution is again distributed as a normally distributed and for all the cases. So let's say हम इस फिगर पे आते हैं, तो let's say ये मेरी एक x एक्सिस हो गई, ये मेरी कोई y एक्सिस हो गई. फाइन. सो इन दोनों एक्सिस पे मेरा सॉरी मैंने फाइन. सो ये मेरी ओके. सो दिस इज माय x एक्सिस, दिस इज माय y एक्सिस. अब मैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ले रहा हूँ, तो मैं इस तरफ से देख रहा हूँ. तो इस डेटा को मैं वन डायमेंशन लेके चल रहा हूँ, टू डायमेंशन नहीं लेके चल रहा हूँ, वन डायमेंशन लेके चल रहा हूँ. तो यहाँ पर मेरे पास आप इस वाली एक्सिस को छोड़ देना, तो हम जब यहाँ पे इसकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी लेंगे तो यहाँ पे मेरे पास कम वैल्यूज हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा आ गई. सो मैं पेन लेके आता हूँ. सो दिस इज ये मेरी वैल्यूज जो है यहाँ पर कम है, तो मेरा जो बार है वो कम है, यहाँ पर मेरा बार ज़्यादा है, यहाँ देखो आपकी डेंसिटी कितनी आ रही है. सो दिस इज माय डेंसिटी. सो मैं इसको एक व्यू से देख रहा हूँ, तो मेरा एक व्यू कैसा हो गया, दिस इज वन व्यू. अगेन मैं इस व्यू से देख रहा हूँ, तो मेरे पास कहाँ आ रही है, ये वैल्यूज कुछ ऐसी आ रही हैं. फाइन. ये वैल्यूज मेरे पास कुछ ऐसे आ रही हैं. सो दिस इज माय मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन. अगेन इसका फिर विजुअलाइजेशन पे जाते हैं. सो यहाँ पे हमने क्या करा, ये देखो हमने क्या करा, इस वाले केस में आते हैं. तो हमने हर एक एक्सिस पे उस डेटा को काटा. ये देखो आपको डिफरेंट एक्सिसेस दिख रहे होंगे, ये अलग अलग मार्जिन्स पे मैं इनको काटता गया. तो यहाँ पर ये मेरा जस्ट ओवरऑल मेरा डिस्ट्रीब्यूशन था एक्स एक्सिस पे, दूसरे वाई एक्सिस पे दिस इज माय जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज पी एक्स वाई. नाउ इस एक्सिस पे देखूंगा, सो दिस इज माय मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई. इस एक्सिस पर देखूंगा, मैं इस तरफ से देख रहा हूँ, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक्स को कांस्टेंट कर रहा हूँ और मेरी वाई की वैल्यूज यहाँ पर ऊपर नीचे हो रही हैं. फाइन. अब मैं इस एक्सिस से देखता हूँ, सो दिस इज अगेन माय मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, सो दिस इज माय अगेन मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, सो दिस इज माय अगेन दिस इज माय मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन. सो हम अगर डिस्क्रीट केस में आते हैं, तो व्हाट इज द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स साइज. सो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स आई में क्या करूंगा, मैं एक्स को कांस्टेंट कर दिया. देखो यहाँ पे एक्स आई एंड वाई जे, तो मैंने क्या करा, एक्स आई को कांस्टेंट कर दिया और जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, तो एक्स तो मैंने रहने दिया, लेट्स से दिस इज x1 एंड यहाँ पे मैंने y की वैल्यू बढ़ाता गया, तो दिस इज मैं इसको बोल सकता हूँ अगेन y. सो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x को मैं कांस्टेंट कर रहा हूँ, जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एंड 1 अगेन प्लस जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं x को हमेशा कांस्टेंट कर रहा हूँ, सो दिस इज जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ y2 अप टू कहाँ तक, मेरे पास jth नंबर ऑफ टर्म है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ p1 कॉमा j. सो मैं क्या कर रहा हूँ, x को मैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी पे जा रहा हूँ, तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, x को कांस्टेंट रख दिया. बाहर मैंने यहाँ पे इंडेक्स लिया है, पर मैं यहाँ x को कांस्टेंट रख रहा हूँ. सो दिस इज, ये मेरी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, x को कांस्टेंट कर दिया और y पर मैं इंटीग्रेट करना चालू कर रहा हूँ. सो दिस इज अगेन, यहाँ पर मैं अगर बात कर रहा हूँ, तो मैं x को कांस्टेंट रख रहा हूँ और y पे इंटीग्रेट करना चालू कर रहा हूँ. आप यहाँ पे देखो, मैं x को कांस्टेंट रख रहा हूँ, एक वैल्यू को कांस्टेंट कर रहा हूँ, सो दिस इज i को मैं कांस्टेंट, सॉरी एक वैल्यू को मैं कांस्टेंट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं, यहाँ पे इस वैल्यू पर मैं उसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो इन सभी को सम कर रहा हूँ. यहाँ पे जा रहा हूँ तो इन सभी को सम कर रहा हूँ. सो हम आगे देख लेते हैं. हमारे पास अगर मल्टीवेरिएट डेटा है, सो दिस इज अगेन मल्टीवेरिएट एंड मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन डेटा. सो मेरे पास ये ब्लू की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी इस केस में, सो दिस इज माय पी एक्स, दिस इज अगेन माय पी एक्स. क्यों, क्योंकि मैं y को इंटीग्रेट करता जा रहा हूँ और x को कांस्टेंट कर रहा हूँ. तो लेट्स से मेरा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी एट द रेट पी एक्स पर मार्जिनल प्रोबेबिलिटी p एट द रेट 5 मेरी क्या आ रही है. तो p पर मेरी वैल्यू क्या आ रही है, दिस इज माय मार्जिनल प्रोबेबिलिटी एट px इक्वल्स टू 5. अगेन अगर मैं ब्लू की वैल्यू, सॉरी अब येलो की वैल्यू बात करें, सो दिस इज व्हाट इज द मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ px when let's say this is 5 point so let's say this is 6. तो 6 पर मेरी अगर मैं येलो की, सॉरी ब्लू की प्रोबेबिलिटी ले रहा हूँ, तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मेरी यहाँ पर ये आ रही है. सो दिस इज माय अगेन मार्जिनल प्रोबेबिलिटी. अगेन मैं अब पी वाई की वैल्यू लेता हूँ, तो पी वाई की वैल्यू पर मेरी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी यहाँ आ रही है, 4 पर मार्जिनल प्रोबेबिलिटी यहाँ आ रही है, 3.5 पे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी यहाँ आ रही है, 3.0 पर मार्जिनल प्रोबेबिलिटी यहाँ आ रही है. विजुअलाइजेशन से कुछ समझ में आया आप लोगों को? यस सर.
इज इट कंफर्टेबल? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो आपको जॉइंट प्रोबेबिलिटी और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी विजुअलाइजेशन से समझ में आई। नाउ वी आर गोइंग फॉर फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला तो आप लोगों को समझ में आता है। नाउ वी आर हैविंग द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला, दिस इज एफ एक्स वाई। सो अब एफ एक्स वाई में से वाई को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ वाई को इंटीग्रेट कर रहा हूँ। सो वाई पे मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। सो we are integrating over here, so fxy, so we are integrating our values over here. so मेरे पास इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो लेट से अब मेरे पास डेटा जो है मेरे पास ये fxs है, तो x मेरे पास हो सकता है नंबर ऑफ इनपुट्स है और y मेरे पास एक आउटपुट है, तो मैं उसको कांस्टेंट मान के चलता हूँ, याद रखना। तो मेरे पास x कितने हैं? लेट से मेरे पास x1 x2 x3 अप टू xn-1 वैल्यूज है, देन मेरे पास एक y वैल्यू। तो मेरे डेटा में कितने एट्रीब्यूट्स हैं? लेट्स से मेरे पास डेटा में n नंबर के एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें से n-1 वैल्यूज जो हैं वो एक्सेस है और 1 वैल्यू जो है वो मेरी y है। फाइन, इतना समझ में आया। अब मैंने क्या करा, हमारे पुराने फॉर्मूले में जाते हैं। सो हमारे पुराने फॉर्मूले में लेट से यहाँ पर मेरे पास डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है? n। क्यों? क्योंकि मेरे पास x में कितनी वैल्यू है? n नंबर ऑफ वैल्यूज है। अब मैंने y को अब मार्जिनल पे जा रहा हूँ, तो मेरे पास मार्जिनल पे कितनी वैल्यूज आ रही हैं? लेट से मैं सिर्फ x को कंसीडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे x को कंसीडर कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक y अलग था। लेट से हमारा जो डेटा था वो हमने कुछ ऐसा डिफाइन करा था, दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3 एंड दिस इज y। तो मेरे पास n, लेट से मेरे पास n इक्वल्स टू 4 था। मैं y पर x पर मेरी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, तो मेरे पास नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कितने हो गए? दिस इज n-4 3। सो मैं यहाँ पर कितनी वैल्यू लिखूंगा? यहाँ n नहीं लिखूंगा। अब मैं यहाँ पे 2 पाई कितने टाइम्स आएगा? मेरे पास 3 टाइम्स आएगा। सो दिस इज माय n-1 वैल्यूज। फाइन, देन वी आर हैविंग, अब मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास कोवेरिएंस मैट्रिक्स आ रहा है, तो ये मेरा कोवेरिएंस मैट्रिक्स है। अब इस कोवेरिएंस मैट्रिक्स को मैं क्या समझा रहा हूँ? दिस इज x and this is y, so this is in covariance matrix, sorry इसको काटें। so this is मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, this is covariance matrix of this is covariance matrix, so this is ये वाली जो मेरी होगी, this is value of sigma xs, this is sigma y, this is sigma xy। यहाँ मैं सिग्मा वाई एक्स लिख दूँ या सिग्मा एक्स वाई लिख दूँ, बात एक ही है। सो सिग्मा एक्स वाई। सो अब मेरे पास ये जो वैल्यूज आ रही हैं, तो इतना बड़ा मैट्रिक्स मेरा जो होगा, अब मेरे पास यहाँ 3 वैल्यूज थी, तो हो सकता है मेरे पास यहाँ पे 3 वैल्यू आ सकती थी, 1 2 3। तो इसको मैंने इतना उठा के यहाँ ले लिया। सो दिस इज माई, इतना जो एरिया है मेरा, दिस इज माई सिग्मा 1 1। फाइन, सो मैं यहाँ सिग्मा 1 1, क्यों? क्योंकि बाकी वैल्यू मैंने यहाँ पे कांस्टेंट ले लिए, तो यहाँ मेरी कैलकुलेशन के लिए वो वैल्यूज नहीं है। सो दिस कम्स माय सिग्मा 1 1 टू द पावर 1/2। नाउ कम्स, अब क्योंकि मैं सिर्फ x को कंसीडर कर रहा हूँ, तो मेरे पास y तो इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? यहाँ पर जो वैल्यूज हैं सिर्फ मैं x का मीन लूंगा। सो दिस इज अगेन माई x मीन, अगेन दिस इज माई x मीन, एंड दिस इज माई कोवेरिएंस मैट्रिक्स फॉर कंसिडरिंग माई मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। इज इट फाइन? आगे बढ़े? फाइन, नो रिस्पॉन्सेस, इट मींस इट इज पॉजिटिव साइन। सो सर या सर एक बार फॉर्मूला समझा दीजिए वापस, जो आपने लास्ट क्लास में बताया था। लास्ट क्लास में बताया था पिछली बार नहीं वाला? लास्ट नहीं सर, ये अभी जो बता रहे थे ना फॉर्मूला में, ये वाला फॉर्मूला। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? हमारे पास फॉर्मूला था दैट इज मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। जब मैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी x की लेके चल रहा हूँ, ठीक है, तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी x की लेके चल रहा हूँ, तो मैं y को इंटीग्रेट कर रहा हूँ। y को कहाँ से इंटीग्रेट कर रहा हूँ? लेट्स से इस केस में, तो दिस इज 4 से -4 तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ। दिस इज 4 एंड दिस इज -4। मैं x को तो कांस्टेंट रख रहा हूँ, लेट्स से इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन पे मेरा x कितना आ रहा है? दिस इज माय x इक्वल्स टू 2। फाइन, तो मैं x को कांस्टेंट रख रहा हूँ और y पे इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो यहीं में कंटिन्यूस डेटा, हमारा डेटा कंटिन्यूस है, तो हम क्या कर रहे हैं? x को कांस्टेंट रख रहे हैं, x को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो लेट्स से x यहाँ पे मेरा क्या हो गया? 2। सो दिस इज माय 2, है ना। अब मैं y को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो y मेरा इंटीग्रेट कहाँ से हो रहा है? लेट्स से y इंटीग्रेट हो रहा है मेरा -4 से 4 तक। फाइन, आप समझ में आया इतना? नाउ हियर कम्स, अब मेरे पास क्या हो रहा है? दिस इज मेरा फॉर्मूला था 1/√2 1/2 2 पाई टू द पावर n/2। नाउ
या तो मैं मेरे डेटा को इस तरह से डिवाइड कर लूं, क्योंकि मैं हमको रिग्रेशन पे चलना है तो मैं रिग्रेशन पे ऐसा कर सकता हूं, या मैं क्या कर सकता हूं, मेरा जो डेटा है उस डेटा को डिवाइड कर लूं। लेट से मेरा एक्स में क्यू आइटम्स आए, टोटल मेरे पास आइटम्स थे एन आइटम्स, एन आइटम्स में से मैंने हमारे डेटा को एक्स में, मैं एक्स के लिए चल रहा हूँ तो एक्स में मेरे पास क्यू आइटम्स हैं, तो वाई में मेरे पास कितना आइटम्स है, दिस इज एन माइनस क्यू आइटम्स। तो इस केस में मैं यहाँ क्या करूंगा, इस केस में मैं यहाँ रिप्लेस कर दूंगा दिस इज क्यू। ठीक, फाइन। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ x को कंसीडर कर रहा हूं, तो जब x को कंसीडर कर रहा हूं तो x में मेरे पास कितने आइटम्स है, दिस इज x आइटम्स, सॉरी q आइटम्स। तो मैं q को मेरा 1 अपॉन जो 2 पाई है, तो 2 पाई मेरा कितने टाइम्स आएगा, दिस इज q बाय 2 टाइम्स, फाइन, सॉरी अंडर रूट ऑफ 2 पाई टू द पावर q टाइम्स। नाउ अब मेरा कोवेरियंस मैट्रिक्स, मेरा कोवेरियंस मैट्रिक्स कैसा था, मेरा कोवेरियंस मैट्रिक्स ऐसा था जिसमें से मेरे पास मैंने क्या करा था, ये मैंने क्यू वैल्यूज निकाल ली थी, तो दिस इज माय क्यू वैल्यूज एंड दिस इज माय एन माइनस क्यू दिस इज माय एन माइनस क्यू वैल्यूज, फाइन। तो यहाँ पर मेरा क्यू वैल्यूज एन माइनस क्यू वैल्यूज है, सो दिस इज माय सिग्मा वन, जो मेरा क्यू बाय एन माइनस क्यू जो हमारा मैट्रिक्स बन रहा है, सो दिस इज माय सिग्मा वन। सो ये सिग्मा वन मैंने यहाँ से उठा लिया, फाइन। तो मेरा सिग्मा वन आ गया। तो मेरा सिग्मा वन क्या था, मैं नेक्स्ट फॉर्मूला में बताऊंगा कि सिग्मा वन हमने उसमें से निकाला था तो हमारे पास डिटर्मिनेंट कौन सा बच रहा था, सो दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा वन, फाइन। तो इतना समझ में आता है इस फॉर्मूले को, दिस इज सिग्मा वन को मैं आपको सिग्मा वन वन को मैं, दिस इज द एंट्री ऑफ सिग्मा वन वन। सो ये जो वाली जो एंट्रीज है, दिस इज सिग्मा वन वन, सो ये मेरी सिग्मा एक्स एक्स, सो ये वाली मेरी एंट्री होगी। अब वो अगर मेरे पास एक वैल्यू थी तो मेरे पास एक वैल्यू आएगी, मेरे पास नंबर ऑफ आइटम्स ज्यादा थे, यहाँ पे x1 x2 x3 या यहाँ पर मेरे पास x आइटम, तो उसके हिसाब से हमारे पास ये वाली एंट्रीज आएंगी। इज इट फाइन? यस सर। ओके, थैंक यू। तो दिस इज माय मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, मैं देख लेता हूँ मेरे पास इसका फॉर्मूला कहाँ आ रहा है। ओके फाइन। सो ये मेरा जो सिग्मा वन था, अब सिग्मा वन में मेरा सिग्मा वन था, अब इस सिग्मा वन में से दिस इज सिग्मा, तो इस सिग्मा में से अगर मैं सिग्मा वन वन निकाल लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचता है, दिस इज सिग्मा टू टू। सो दिस इज एन डिटर्मिनेंट ना, सो डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू सिग्मा वन वन इंटू सिग्मा टू टू माइनस हमारे पास क्या वैल्यू आ रही थी, सिग्मा वन वन इंटू सिग्मा टू टू। अब मैंने यहाँ से सिग्मा वन वन निकाल लिया तो यहाँ से सिग्मा वन वन हट गया, तो यहाँ पे मेरे पास डिवाइड में सिग्मा वन वन आया, सो दिस इज माय इनवर्स ऑफ सिग्मा वन वन, फाइन। तो अगर मैं दूसरी वैल्यूज निकालने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास बचा हुआ मैट्रिक्स जो n माइनस क्यू था, वो n माइनस क्यू में मेरे पास कितना मैट्रिक्स बचा, दिस इज सिग्मा टू टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा टू टू माइनस सिग्मा वन टू ट्रांसपोज सिग्मा वन वन इनवर्स इनटू सिग्मा टू टू। इतना समझ में आया आप लोगों को? दिस इज जस्ट एन डिटर्मिनेंट फॉर्मूला, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। So now we are going for the conditional distribution. So this is my marginal distribution. हमने joint probability distribution समझ लिया, then we are going for the conditional distribution. So conditional distribution में मेरे पास दो चीजें आती हैं. First is dependent events and second one are the independent events. So दो events मेरे पास independent आ रही हैं. Let's say क्या example हो सकता है कि दो event मेरे पास independent आ रही हो, एक बारिश हो रही है और दूसरा मैं खाना खा रहा हूँ, तो ये दोनों मेरे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, फाइन। या हम बोल सकते हैं कि अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं और हमारी क्लास चल रही है, दिस आर यूजुअली एन इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और अनदर एग्जांपल इज इन टॉसिंग अ कॉइन। सो मैं एक बार कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, मेरे पास एक आउटपुट आया, दूसरी बार फिर कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, सो मेरे पास एक आउटपुट आया। तो पिछली बार की इवेंट के आउटपुट से मेरा जो नेक्स्ट इवेंट है उसका आउटपुट क्या सफर हो रहा है, या एक इवेंट होने से दूसरे इवेंट होने का आउटपुट क्या सफर हो रहा है, या मैं दो कॉइन को एक साथ टॉस कर रहा हूँ। तो जब दोनों कॉइन को एक साथ टॉस कर रहा हूँ तो एक के आउटपुट के कारण दूसरे का आउटपुट मेरे पास आ रहा है, दूसरे का आउटपुट चेंज हो रहा है या अफेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि दिस टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नाउ वी आर गोइंग फॉर द डिपेंडेंट इवेंट्स। नाउ अब क्या हुआ कि मैंने वो जो दोनों जो कॉइन थे उन दोनों कॉइन को मैंने चिपका दिया, तो अब वो दोनों कॉइन मिलके एक हो गए। अब मैंने सिक्का उछाला तो क्या दोनों सिक्के का आउटपुट एक दूसरे पर डिपेंड हुआ? यस। सो दिस इज एन डिपेंडेंट इवेंट। लेट्स से अगेन एन एग्जांपल, मेरे पास एक बैग है, उस बैग में मेरे पास 5 मार्बल्स हैं जिसमें से 2 ब्लू हैं, 3 5 हैं, फाइन। अब मैंने उसमें से व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग ब्लू मार्बल, सो गेटिंग ऑफ ब्लू मार्बल फ्रॉम दिस चांसेस इज जस्ट एन 2/5, सो ब्लू मार्बल 2/5 हो गया। नाउ
पहली बार तो मैंने निकाल लिया, अब दूसरी बार फिर मैंने निकाला, तो क्या दूसरी बार वापस निकालने पर क्या मेरी प्रोबेबिलिटी 2/5 हो रही है? नहीं। अगर मैंने उसमें से निकाला है तो नेक्स्ट कम मेरी क्या प्रोबेबिलिटी चेंज होगी अगेन, या तो अगर मैंने रेड निकाला है तो मेरी प्रोबेबिलिटी 2/4 होगी, अगर मैंने ब्लू निकाला तो मेरी प्रोबेबिलिटी 1/4 हो रही है। मतलब एक इवेंट होने के कारण क्या दूसरी इवेंट की का आउटपुट सफर करता है? अगर सफर करता है, इट मींस दीज आर डिपेंडेंट इवेंट्स। सो for these dependent events we have to consider the conditional distribution. So we are going for कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन देखा, हमने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन देखा, देन वी आर गोइंग फॉर कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। सो what is the conditional distribution? So let's say we are having an event PA, it means the probability of event A. Now when probability of event B is occurring, what is the probability that again an event B is occurring, so it affects the probability of A. So we can say that probability of B means the what is the probability of event B when event A is given. Let's say what is the probability of having a student in my class when again a class of Ankit sir is going on? So it certainly affects my output. Otherwise मेरी क्लास अगर अकेली चल रही थी तो होप सो कि मेरे पास 58 स्टूडेंट बैठे हैं, होप सो। नाउ अगेन अगर अंकित सर की भी क्लास चल रही है और मेरी की भी क्लास चल रही है, लेट्स से नाउ दिस इज एन इवेंट ऑफ हैपनिंग द क्लास ऑफ माय क्लास, सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी, लेट्स से दिस इज होप सो इट इज 58। नाउ what is the probability? अब अंकित सर की क्लास भी चल रही है, let's say this is अंकित सर, what is the probability of having students in अंकित सर? So by default मेरी एक क्लास चल रही है, so this is what is the probability of having a student in number of students are the probability of students having Ankit sir class. So it solely depends on probability of event A. अगर event A नहीं हो रही होती तो उनके पास भी 58 स्टूडेंट्स होते, अगर मेरी क्लास हो रही है तो इट मीन्स दैट उनकी क्लास में 57 स्टूडेंट्स होंगे और मेरी क्लास में 50 मेरे पास 1 स्टूडेंट होगा। सो दिस इज हाउ द प्रोबेबिलिटी चेंजेस। फाइन। सो where it comes from? So we are having a joint probability distribution. So joint probability, what is the probability of event A and probability of event B that occurring simultaneously, sorry, jointly? So it is given as the probability of A into probability of B given A, or we can say that probability of B into probability of A given B. सो दिस इज हाउ। अगर हम इस पे आगे कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास बेस फॉर्मूला आ जाएगा, सो हमारे पास सिलेबस में नहीं है। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए and B upon the probability of A. So this is the joint probability and this is our marginal probability. So हमने ये क्यों पढ़ा था? So this is how we calculate the joint probability. Joint probability का formula हमारे पास था। Then the marginal probability हमने calculate कर ली। So we have distributions available here. So what are this distribution? So this conditional distribution is, let's say हमने जो भी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी में हमने सिग्मा 1 यूज करा था, तो हमारे पास रिमेनिंग आइटम्स कितने आया? सो दिस इज माय रिमेनिंग आइटम्स। नाउ लेट्स से फॉर इजीनेस मैं इसको बार बार यूज नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत बड़ा है और टाइप ज़्यादा हो रहा था, तो लेट्स से आई कंसीडर्ड इट एज एन ए। कंप्यूटर इंजीनियर्स थोड़े से कामचोर होते हैं। फाइन। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई? Conditional probability of y given x. So this is conditional probability of y given x is equals to, this is the joint probability of x and y given the marginal probability of x. So this is marginal probability of x. So dividing all these two terms, so आप जब उन दोनों terms को आप divide करेंगे, so what we will get? So we'll get this is let's say आपके पास फॉर्मूले में ऊपर ये सिग्मा था, नीचे वाले में आपके पास ये था, तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास ये बचा, तो दिस इज माय a. So I get this a by 2 and again this is a inverse. So this is again a inverse. Now ऊपर वाले केस में हमारे पास x माइनस म्यू था, होल डेटा में x माइनस म्यू था और y माइनस म्यू था, so हमारे पास अब क्या बचा? दिस इज y माइनस b. So this is just remaining. हम उन दोनों आइटम्स को रिमेन करें। सो जब हम उन दोनों आइटम्स को b को मैनेज करेंगे तो हमारे पास b क्या आएगा? दिस इज म्यू y प्लस this again and
matrix available. So this is my B. So this reflects how many values of y you are having. So this is again RB. So we can say that this is again a normally distributed. This is again a normally distributed with mean. So with mean. So this is again our mean. So this is my mean B with my covariance matrix. So what is my covariance matrix? So this is my covariance matrix equals to A. So this is how we can say that again the marginal distribution and conditional distribution are normally distributed. If we are having a joint distribution is normally distributed, then marginal and the conditional distribution are again normally distributed over here. So till now, any problem over there? Any questions from now? So I will include. So I will start by maximum likelihood and linear regression by tomorrow. So हम क्विक रिव्यू करेंगे उस क्लास का. सो आज की क्लास में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए. नो सर. ओके फाइन. हरेंद्र कोई प्रॉब्लम? और आज कोई क्लास में से हमको बाहर कर रहा है कि कोई किसी स्टूडेंट को? नो सर. नो सर. ओके नो सर. ओके मैंने सेटिंग कर ली है. फाइन. सो मैं जरा एक बार मेरी अटेंडेंस ले लूँ, फिर आप वेट करिएगा. सो what is the attendance? Today's attendance is, I am taking attendance, so download attendance list. Fine, thank you. So Thank you. we can Thank you, sir. Okay, Thank okay. you, sir. Thank you. Thank you, sir. Sir. Thank you.